ایک غریب سا عام درزی جس نے ایک کفن سلائی کیا اور اس کفن سلائی کرنے پر اسے اتنی بھاری سزا ملی۔ آئیے جانتے ہیں آخر ایسا کیا ہوا جو اس درزی کو کفن سلائی کرنے پر اتنی بھاری سزا دی گئی، اور آگے جو ہوا اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ برسات کا موسم تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے اور غریب رفیق درزی اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوا کپڑے سلائی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ درزی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ دروازہ کھولو۔ درزی کی بیوی اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلی تو درزی نے اسے منع کر دیا اور خود آہستہ آہستہ جا کر دروازہ کھول دیا۔ ایک سیاہ برقعے میں ایک عورت اندر داخل ہوئی اور اپنا نقاب ہٹا دیا۔ اس نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، کانوں میں ہیروں کی جڑی ہوئی بالیاں تھیں اور عطر کی خوشبو سے پورا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ درزی اور درجن حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ رعب اس قدر تھا کہ وہ اس کی تعظیم کے لیے بھی اٹھ نہ سکے۔ درجن تو تھر تھر کانپ رہی تھی اور درزی بھی اکرو دھرا بیٹھا تھا۔ عورت نے انہیں دیکھ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے کچھ سلوانا ہے۔ جب درزی نے یہ سنا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا، سمجھ گیا کہ کسی امیر گھرانے کی عورت ہے۔ آداب بجا لایا۔ درجن نے بھی سلام کیا اور کہا کہ جناب بیٹھ جائیے۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹھنے کا میرے پاس وقت نہیں، میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں، ایک کفن سلائی کرنا ہے۔ جب درزی نے یہ سنا تو وہ چونک کر بولا، کفن؟ رات کے وقت کفن سلائی کرنا ہوگا، میں اکیلا گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پھر اس عورت نے پوچھا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ درزی نے کہا کہ میرے گھر پر سامان بہت زیادہ ہے اور مجھے چوری کا خطرہ ہے۔ پھر وہ عورت بولی کہ تمہاری بیوی گھر پر ہے نا، پھر ڈر کیسا؟ پھر درزی بولا کہ یہی تو ڈر ہے کہ اکیلی بیوی کا رہنا ہی تو گھر میں مسئلہ ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ بھلا وہ کیوں؟ پھر درزی بولا کیونکہ یہ ڈرتی بہت ہے اور اوپر سے ہمارا گھر گاؤں سے بہت دور ہے، ایک جنگل کے کنارے پر ہے جہاں پر چڑیلوں کا بھی بسیرا ہے، اور یہ ڈرنے کی ہی تو بات ہے، ابھی ہم تو آپ کو دیکھ کر سہم گئے تھے۔ وہ عورت بولی ڈر گئے تھے؟ کیا تم نے مجھے چڑیل سمجھا تھا؟ درزی بولا ارے نہیں، سرکار تو پری معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ عورت مسکرا کر بولی ٹھیک سمجھے، چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اڑا کر لے چلتی ہوں اور تمہاری بیوی کو بھی ساتھ لے چلتی ہوں۔ درزی بولا ابھی کے لیے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن صبح کے وقت ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ عورت بولی کہ ابھی اپنا کام چھوڑ دو کیونکہ کفن بہت ضروری ہے، میں تمہیں بہت سی اجرت دوں گی۔ غریب درزی تو ایسا ہی چاہتا تھا، جھٹ سے ہاں کرتی۔ پھر بیوی کی طرف نظریں گھمائی اور پوچھا ہمارے ساتھ چلو گی بیگم؟ درزن بولی ہمارے تو سر میں بہت درد ہے اور اوپر سے موسم بھی خراب ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو 6 ماہ تک چارپائی سے نہیں اٹھ سکوں گی، کہیں آپ کو میرا بھی کفن نہ سلائی کرنا پڑے۔ وہ عورت بولی خدا نہ کرے، ویسے جلدی کرو، وقت نہیں ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے، آپ کو پوری حفاظت کے ساتھ لے کر جاؤں گی اور حفاظت کے ساتھ ہی چھوڑ جاؤں گی، آپ کو صرف اٹھ کر بیٹھنا ہوگا، صرف یہی تکلیف کرنی ہوگی۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں جو آپ کو مارنا چاہیں گے یا آپ کا کچھ برا سوچیں گے، مرے آپ کے دشمن، آپ کی تو ابھی عمر ہی کیا ہے۔ اپنی تعریف سن کر درجن تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی اور پھر درزی کی طرف دیکھ کر بولی اجی سنتے ہو کتنی قدردان ہے بیچاری، چلو میں بھی چلتی ہوں، آج کے بعد تم بھی مجھے بوڑھی مت سمجھنا۔ یہ کہہ کر درجن نے اپنا کچھ سامان اکٹھا کیا اور پھر درزی کے ساتھ اس عورت کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد گاڑی ایک پرانے سے عالی شان قلعے کے دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ گاڑی کے رکتے ہی چند عورتیں سپاہیانہ لباس پہنے ہوئے جلدی آئیں، ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ انہوں نے درزی اور درجن کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور زبردستی ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر وہ محل کے اندر لے گئیں اور ایک کمرے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ درزی اور درجن پر تو خوف چھایا ہوا تھا، تھر تھر کانپ رہے تھے، منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ کافی دیر تک دونوں بت بنے بیٹھے رہے، پھر آخر کار درزی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہائے شامت کھینچ لائی۔ درجن بولی میں تو کچھ نہیں جانتی، آپ ہی آنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ پھر درزی بولا میں نے تو بہانہ لگانا چاہا تھا لیکن تم بھی جھٹ سے مان گئی۔ درجن سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی ارے مردود، تو ہی لے کر آیا تھا، میں نے تو صاف بہانہ لگا دیا تھا کہ میرے سر میں درد ہے۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ وہی خوبصورت نوجوان عورت شاہانہ لباس پہنے سر پر تاج دھرے آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پیچھے چند نوکرانیاں چل رہی تھی اور ان کے پیچھے حبشی سپاہی ننگی تلواریں لیے آ رہے تھے۔ پہلا ہی خوفناک منظر دیکھ کر درزی کے تو اوسان خطا ہو گئے، وہ تو زمین پر لیٹ گیا اور آداب بجا لا کر رونے لگا۔ درجن تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ شہزادی قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر 2 سپاہیوں نے مل کر اسے اٹھایا،
फिर दर्जी उठकर बैठा। सिपाही ने दर्जी को बिठाकर छोड़ दिया तो वो फिर ऊंधा गिर गया और एक और नौकरानी दर्जन को संभाल रही थी। जितना वो उन्हें संभालती थी वो उतना ही जमीन पर गिरते थे। आखिर शहजादी ने तसल्ली दी, मियाँ रफीक घबराओ नहीं, उठो, जरा सा काम लेना है और कोई बात नहीं। शहजादी ने यह कहकर झट से 500 अशरफियों की थैलियां उनके सामने डाल दी। अशरफियों की झनकार सुनकर दर्जन और दर्जी खुश हो गए, झट से उठ बैठे और आदाब बजा लाकर अशरफियां इकट्ठी करने लगे। दर्जी ने अपना सुई धागा और अपनी कैंची को संभाल लिया। फिर शहजादी ने हुक्म दिया कि दर्जी को दूसरे कमरे में ले जाओ और दर्जन को मेहमान खाने में। सिपाही आदाब बजा लाया और फिर दर्जी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। आंखों से पट्टी खुली तो दर्जी ने देखा कि सामने सब्ज लिबास पहने हुए एक खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी हुई है। करीब खड़े सिपाही ने कहा कि इस औरत का कफन सिलाई करना है। यह देखकर दर्जी चौंक गया और जैसे ही उसने सिपाही की तरफ देखा तो सिपाही ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए इशारा किया। सोचते क्या हो, जल्दी से कफन तैयार करो। सिपाही ने इतना कहा और वहां से चला गया। सामने मशहरी पर एक हसीन लाश पड़ी थी जो एक खूबसूरत शहजादी मालूम होती थी। गले में फूलों के हार पहने हुए थी, बदन पर खूबसूरत और शाही लिबास था, कानों में बालियां थी और गले में हीरे का बना हुआ एक हार। उसे देखकर ऐसा मालूम नहीं होता था कि उसे कत्ल कर दिया गया है, बल्कि उसके गले के निशान से यह मालूम होता था कि जैसे उसका गला घोंट दिया गया है। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसके मासूम से चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी बेरहम इंसान ने खिलती हुई कली को मसल कर रख दिया था। दर्जी काफी देर तक उस खूबसूरत लड़की को देखता रहा। फिर अचानक से एक हीरे की अंगूठी पर नजर पड़ी। लालची तो था ही, इधर उधर देखा और झट से वो अंगूठी निकाल कर अपने पास रख ली। लाश की पैमाइश की और फिर कफन सीने बैठ गया। अब दर्जन की सुनिए। उसे शाही मेहमान खाने में ले जाया गया। काफ़ी आहो भगत हुई। शहजादी ने उसके सामने खाना रखवाया और उसे तसल्ली दी, लेकिन दर्जन पर ऐसा रौब छाया हुआ था कि मुंह से कुछ नहीं बोलती थी। वो बार बार सोच रही थी कि न जाने दर्जी पर क्या गुजरती होगी। उसे परेशान देखकर शहजादी ने अपने गले से कीमती हार उतारा और उसके सामने रख दिया। हार को देखकर वो खुश हो गई। उसने खुश होकर शहजादी के पाँव पकड़ लिए और उसे दुआएं देने लगी। उसे खुश देखकर शहजादी को कुछ तसल्ली हुई और फिर वहां से उठकर किसी जरूरी काम के लिए चली गई। शहजादी जाते जाते एक बांदी को कह गई कि तुम इसे बातों में लगाकर रखना। शहजादी के जाते ही दर्जन ने बांदी की तरफ देखा और कहा, अरे तुम्हारे अंदर से तो बड़ी खूबसूरत खुशबू आती है। बांदी बोली, तुम्हारी नाक बड़ी तेज है। फिर दर्जन बोली, अब तो इतनी तेज नहीं रही, पहले तो मैं दूर से देखकर बता देती थी कि इसने काला नमक खाया है, इसने प्याज की चटनी खाई है और किसने क्या कुछ खाया है, और मैं तो गुड़ सूंघकर बता देती थी कि ये कितने बरस का है। फिर बांदी ने ठट्ठा लगाकर कहा, ओ अच्छा, फिर तो आप बड़ी होशियार हैं। दर्जन बोली, अगर मैं होशियार ना होती तो क्या इस दर्जी के घर में होती। बड़ा चालाक आदमी है, पूरा का पूरा हकीम है। इसके बाप ने इसे पढ़ाना लिखाना चाहा था, लेकिन इसे दर्जी बनने का शौक था। ये हर बार मदरसे से भाग आता। मौलवी ने काफ़ी बार डंडे से डराना चाहा, लेकिन ये नहीं माना। बांदी बोली, अगर ये चला जाता तो कफन कौन सिलाई करता। दर्जन को जैसे कुछ याद आ गया हो, वो चौंक कर बोली, अरे हाँ, यहाँ कौन मर गया है, किसका कफन सिलाई हो रहा है। बांदी ये सुनकर खामोश हो गई। इस पर दर्जन ने फिर वही सवाल किया। बांदी इधर उधर देखकर बोली, दुल्हन का इंतकाल हो गया है। दर्जन ने पूछा, कौन दुल्हन। फिर बांदी ने बताया कि वली अहद शहजादे की दुल्हन। दर्जन ने यह सुना तो वो चौंक कर बोली, अरे वजीर की छोटी बेटी, उसका तो अभी ब्याह हुआ था। औरत की जिंदगी तो मर्द के रहमो करम पर है, क्या दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था। बांदी बोली, हाँ कुछ ऐसी ही बात है। बड़े आदमी तो बीवी को पैर की जूती समझते हैं, लेकिन हम तो एक के साथ ही गुजार देते हैं। दर्जन ने कहा, बेचारी कुड़ कुड़ कर मरी होगी। बांदी बोली, मरी नहीं, मार दी गई, किसी से कहना मत। दर्जन ने यह सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, इन अमीरों से तो हम गरीब ही अच्छे हैं। बेचारा दर्जी 20 सालों से मुझे झेल रहा है। बेचारे को झाड़ू से पीट लेती हूँ, लेकिन वो अल्लाह का बंदा कुछ नहीं कहता, कान पकड़ा गुलाम है। यह सुनकर बांदी बोली, अरे हाँ, यही हाल तो मेरे कल्लू के बाबा का है। मुझे देर हो जाती है तो बेचारा झाड़ू बर्तन खुद ही कर लेता है। कल परसों की ही तो बात है, बेचारे ने मुझे चिलम भरने के लिए कहा। मैं यहाँ से काम से थकी हारी गई थी। मैंने जैसे ही चिलम का नाम सुना तो मैं चिढ़ गई। धड़ से चिलम का हुक्का उठाकर उनके मुंह पर दे मारा। यकीन मानना बुआ, जले सड़े पानी से उनका मुंह धुल गया। बेचारे पिटे भी और वहाँ से तितर बितर हो गए। ऐसा लगता था जैसे गटर के पानी से नहा कर आए हैं। लेकिन उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा। बेचारा हंसकर रह गया और सीधा मस्जिद के गुस्ल खाने में जाकर नहाया और फिर बाजार पहुँच गया।
वहाँ से नया हुक्का खरीद लाया, खुद आग सुलगाकर चिलम भरी और फिर हुक्का पिया। बेचारा हुक्का पीता था और हंस हंस कर मुझ पर धुआं छोड़ता था। बेचारा ऐसा सीधा साधा आदमी है। फिर दर्जन बोली, अरे हाँ, मियाँ बीवी के तो ऐसे ही राज होते हैं। सुन तो सही, अगर बीवी के नखरे उसका आदमी ना उठाए तो क्या वो काजी उठाएगा जिसने निकाह पढ़ाया है। बांधी बात काट कर बोली, काजी की खाला खामोश रहो, शहजादी आ रही हैं, कोई जिक्र मत करना। दर्जन होंठ पिचका कर रह गई। दर्जी बेचारा कफन तो सिलाई कर रहा था, लेकिन बार बार मारे खौफ के लाश की तरफ देखता जा रहा था। दर्जी कफन सिलाई करने में माहिर था और दूसरा खौफनाक इस जगह से जल्दी निकलना चाहता था। उसने फटाफट कफन को सिलाई किया। सिपाही दर्जी की कारागरी देखकर खुश हो गया और बोला, चल तुझे शहजादी से इनाम दिलाता हूँ और फिर तुझे वापस तेरे घर छोड़ आऊँगा। दर्जी तो ऐसा ही चाहता था। खुशी खुशी सिपाही के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। फिर सिपाही दर्जी को शहजादी के पास लेकर आ गया। दर्जी आदाब बजा लाया और जाने की रुखसत चाही। शहजादी बोली, उजरत तो तुम्हें दी जा चुकी है, लेकिन इनाम के लिए 100 अशरफियाँ और ले लो। दर्जी ने हाथ बांधकर झुककर सलाम किया। फिर सिपाही ने दर्जी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे बाहर ले गया। दर्जी ने घबरा कर कहा, अरे सरकार, मेरी बीवी तो यहीं पर रह गई। सिपाही हंस कर बोला, घबराओ नहीं, वो तुमसे पहले ही गाड़ी में बैठी है। गाड़ी में बैठकर दर्जी ने अपनी आंखों से पट्टी खोलना चाही, लेकिन सिपाही ने उसे टोक दिया। खबरदार, क्या करते हो। दर्जी ने माफ़ी चाही और खामोशी से बैठ गया। फिर अपनी बीवी को टटोलता टटोलता अपने घर तक पहुंच गया। घर के करीब पहुंचकर सिपाही ने दोनों की आंखों से पट्टी खोल दी और उनके घर पर छोड़ दिया। दर्जी ने गाड़ी से उतरकर अपना घर देखा और अपनी बीवी देखी और खुदा का शुक्र अदा किया। उस रात दरवाजे का ताला लगाकर लेटे और तब नींद आई। सुबह सवेरे उठते ही दर्जी ने सारी अशरफियाँ गिनी, जगमगाती अंगूठी को देखा और फिर दर्जन की उंगली में पहना दिया और कहा, ठीक है ना, अच्छी लगती है, ऐसा मालूम होता है जैसे ये तुम्हारी ही है। दर्जन ने हैरान होकर पूछा, किसकी है ये और कहाँ से आई है। दर्जी ने बताया, ये उसी मरहूम शहजादी की है जिसका कफन सिलाई करके आया हूँ। उसके भी ऐसे ही नाजुक और खूबसूरत हाथ थे जैसे तुम्हारे हाथ हैं। क्या कहूँ, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ उसे मारा गया था। दर्जन बोली, ये काम उसके शोहर का है। बांधी बताती थी कि दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। दर्जी बोला, अरे तभी तो हमारे साथ ऐसा किया है। चुपके चुपके हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए और आंखों पर पट्टी बांध कर ही चुपके चुपके छोड़ गए। दर्जन बोली, रातों रात उसे दफना दिया गया होगा ताकि किसी को पता ना चले। बेचारी वजीर की बेटी थी, उनको क्या कहेंगे। दर्जी बोला, अरे हाँ, वजीर तो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है, उसकी बेटी भी शरीफ ही होगी और नेक होगी। फिर दर्जन बोली, नेक हो या बद, लड़की की किस्मत ही कमज़ोर होती है। दर्जी बोला, हाँ, कहने को तो वजीर ज़ादी है, लेकिन क्या ही उसकी किस्मत थी। बेचारी कुत्ते की मौत मारी गई, इससे अच्छी तो बाप के घर ही भली थी। दर्जन बोली, और शादी होते ही 100 बलाओं का सामना होता है। यह ससुराल नहीं बल्कि बूचड़ खाना है, जहाँ लड़की का अंग अंग हर लम्हा छुरी के नीचे रहता है। दर्जन बोली, अगर कोई अकल वाला हो तो ऐसे घर में कभी भी अपनी बेटी ना दे। दर्जी सड़कर बोला, तुम क्यों अपना पेट फाड़े जाती हो, तुम तो सुख से रहती हो, ना सास ना नंद ना ससुर ना जेठ। दर्जन बोली, वारे मुँहे, सास ससुर नहीं तो क्या हुआ, तू जब भूत मुझे चिमटा हुआ है, तू ही काफ़ी है। दर्जी बोला, मैं भूत हूँ तो तू चुड़ैल है, उस वजीर की बेटी की तरह तेरा भी गला दबा दूंगा। यह सुनकर दर्जन बोली, ये बातें किसी और को सुनाना, हाथ लगा कर देख, इतनी चीखूंगी कि मुर्दों को भी सूते जगा दूंगी। इस गले में तूने कभी हार ना मोती पहनाए, खुदा तुझे शर्माए, तुझे उठा ले या मुझे मौत आए। इतनी रकम इकट्ठी करके लाया है, अब तो मेरे लिए हार बनवा दे, वरना तुझे भी पकड़वा दूंगी और उसको भी, वो जो शहजादी बनी बैठी है। दर्जी बोला, तेरा सत्यानाश हो जाए, चुप हो जा, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। नियाज़न, मैं तेरे नाज उठाने के लिए तैयार हूँ। हंसली बनवाऊँ, कठिया बनवाऊँ, पौंजियाँ बनवाऊँ, झूमर टीके लाऊँ और फिर तुझे देखकर गाऊँ। जेवर सारा पहन रही है, कान में बाली फूलों की। यह सुनकर दर्जन बहुत खुश हुई और उंगली दिखाकर बोली, अंगूठी ही कितनी भली मालूम होती है, सारे जेवर पहन लूं तो पहचाने भी ना जाऊं। दर्जी मुंह चीरकर बोला, ऐसी मालूम हो जैसे मलका। फिर दर्जन बोली, और तू बादशाह। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते के बाद दर्जी एक दिन बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कफन वाली बात से दर्जी चौकन्ना हो गया था। अब जो आवाज़ आई तो दर्जी के कान खड़े हो गए। दिन का वक्त था, इसलिए दर्जी ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। देखता क्या है कि एक सिपाही खड़ा अपनी मूछें मरोड़ रहा है। उसकी सूरत देखकर बहुत डरा और दबी हुई आवाज़ में बोला, क्या हुक्म है जनाब। सिपाही मूछें मरोड़कर बोला, सरकार बुला रही हैं, जाओ और उनका नाप लेकर एक जोड़ा तैयार कर दो। जाओ अंदर, वो आ रही हैं,
थोड़ी देर बाद मकान के सामने जो गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर से एक खूबसूरत नौजवान औरत उतरी। सिपाही ने उसे सलाम किया और वो स्याह बुरखे में लिपटी हुई दर्जी के घर के अंदर दाखिल हुई। दर्जी ने बड़ी आओ भगत की। दर्जन ने भी हाथों हाथ लिया और चापलूसी की बातें करने लगी। दर्जी बार बार घुमा घुमा कर सलाम कर रहा था। लड़की ने बगल से निकालकर 2 रेशमी थान दर्जी के आगे डाल दिए और कहा, नाप लेकर कपड़ा काट लो। दर्जी ने पैमाइश की और फिर कपड़ा तराशने लगा। दर्जन जरा लालचन थी। वो बार बार कतरें उठाकर देख रही थी कि अचानक लड़की की नजर उस हीरे की अंगूठी पर पड़ गई। लड़की देखकर हैरान रह गई। वो बार बार अंगूठी को देखती रही और फिर उठकर अपने महल में चली गई। घर जाकर अपनी माँ से बोली, अम्मा जान, वो जो अंगूठी आपने सुरैया को जहेज में दी थी वो 1 दर्जन पहने हुए है। माँ ने कहा, सितारा ये तुम क्या कह रही हो? सुरैया तो शहजादे के साथ सैर तफरी के लिए पहाड़ पर गई है, फिर उसकी अंगूठी यहाँ पर कैसे हो सकती है? तुम्हें आंखों का धोखा हुआ होगा। फिर लड़की बोली, अरे अम्मा जान, आंखों देखी चीज का धोखा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हमारे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए। उसकी माँ बोली कि हमारा दर्जी के यहाँ जाना मुनासिब नहीं, अब की बार भी तुम जाओ और दर्जन को ही यहाँ पर ले आओ। पहले तो प्यार से पूछना चाहिए, फिर डरा धमका कर, और फिर तो मार के आगे भूत नाचता है। लड़की ने एक कनीज को बुलाकर समझा दिया कि इस तरीके से उस दर्जन को महल में ले आओ। उसे जाकर कहना कि वो जो अभी जोड़ा सिलाने के लिए देकर गई हैं उसके भाई की शादी है, इनाम पाने का बेहतरीन मौका है, चलकर खुद ही कपड़ा ले आओ। चूँकि दुल्हन यहाँ पर चलकर नहीं आ सकती इसलिए तुम्हें ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो बांदी बड़ी चालाक थी। वो फौरन मिठाई का टोकरा लिए गाड़ी में बैठी और दर्जन के घर पहुंची और फिर हंसते हुए बोली, ऐ बुआ मुबारक हो, आज तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। महल से बुलावा आया है, जरा जल्दी चलो। दर्जन ने मिठाई लेकर मुस्कुराते हुए पूछा, ऐ कौन सा महल? छोटा महल, बांधी ने बताया, जो अभी कपड़ा सिलाने के लिए देकर गई हैं। उनके भाई की शादी है, दुल्हन की बरी बूंदी जाएगी, बहुत इनाम मिलेगा, चलो जाकर कपड़ा ले आओ। दर्जन ने दर्जी की तरफ देखकर बोला, मैं जाऊं या तुम? फिर वो कनीज बोली, अरे पागल हो, मर्द को भेजती हो? ये कहाँ का कानून है कि दुल्हन की बरी नाचते फिरे? वो तो 4 औरतों के सामने ही बूंदी जाएगी, सीने को यहाँ ले आओ। दर्जन आंख दबाकर बोली। बांधी बोली, अरे वारी लुगाई, दुल्हन की बरी सीने वालों के सिवा और कौन छू सकता है? चल, रोजी को लात क्यों मारती है, अच्छा मौका है। फिर दर्जन ने दर्जी से पूछा। दर्जी लालची तो था ही, वो झट बोला, चली जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना, मुझे बकरी के लिए चारा लेने जाना है। बांधी चुटकी बजाकर बोली, इन्हें यूं वापस लेकर आती हूँ, बस बरी का कपड़ा कटते ही इन्हें वापस छोड़ जाऊंगी। दर्जन ने अंदर जाकर जल्दी जल्दी मिठाई खाई, उंगलियां चाट कर सर पर बुरखा डालकर बांधी के साथ डोली में बैठकर चल दी। रास्ते में दर्जन सोचती रही कि आजकल तो किस्मत बड़ी मेहरबान है, दौलत हर तरफ से बरस रही है। एक कफन सिलाई करने पर इतनी दौलत मिली है, शादी में तो वारे न्यारे हो जाएंगे, काफी सारी उजरत मिलेगी और उसके अलावा इनाम और दावतें भी खाएंगे, दुल्हन के कपड़ों में से जोड़ा भी उड़ाएंगे। ये सोचते सोचते महल का दरवाजा आ गया। बांधी ने उसे डोली से उतारा, आहिस्ता आहिस्ता नखरे के साथ नीचे उतरी और जनाना खाने में पहुंची तो देखती क्या है कि सामने वही वजीर की बीवी अपने सामने जेवरों के डब्बे रखे हुए बैठी है और करीब वही लड़की अम्मा अम्मा कहकर उन जेवरों को उलट पुलट रही है। दर्जन ये देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि दुल्हन के लिए जेवर देखे जा रहे हैं, इनाम में 1 आध जेवर तो मुझे भी मिल जाएगा। करीब जाकर अदब के साथ सलाम किया और गला फाड़कर दुआएं दी। वजीर की बीवी ने खुश होकर हाथ मिलाया और अंगूठी को पहचान कर बोली, अंगूठी तो खूब पहनी है, किस कीमत पर पहनी है ये? दर्जन ने यह सोचकर कि ये इस पर भी मुझे कुछ इनाम देंगी, वो ज़रा खुश होकर बोली कि जनाब, ये भी आपकी तरह किसी नेक खातून ने मुझे दी थी। फिर बेगम ने पूछा, किसने दी थी और कब दी थी? इस पर दर्जन कोई जवाब न दे सकी और सर खुजाकर रह गई। फिर लड़की ने अपनी माँ को इशारा किया। बेगम ने फिर पूछा कि तुमने बताया नहीं कि ये अंगूठी तुम कहाँ से लाई? दर्जन बेचारी बौखला गई और इधर उधर देखने लगी। बेगम गुस्से में बोली, बताओ तुम डर क्यों रही हो, क्या चुरा कर लाई हो? फिर दर्जन ने कहा कि जनाब, मैं कुछ नहीं जानती, वो कहीं पर कफन सीने के लिए गए थे, वो लेकर आए थे। बेगम ने घबरा कर पूछा, क्या कफन? किसका कफन सीने के लिए गया था? दर्जन ने बताया कि जिनका कफन सीने के लिए गया था ये उन्हीं की अंगूठी है। बेगम बोली, क्या बकती हो, ये अंगूठी तो सुरैया की है, मेरी बेटी को नाहक कोस रही है। अब दर्जन को मालूम हुआ कि मैं कहाँ आ फंसी, ये तो वजीर की बेगम मालूम होती हैं। अंगूठी को देखकर इनका ये हाल है, अगर सारी बातें मालूम कर ली तो ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये सोचकर उसने बात को घुमाना चाहा और कहा, सरकार मुझे दौरा पड़ रहा है,
वो सर घुमाकर जमीन पर औंधी पड़ गई और खरखर करने लगी। बेगम ने फिर पूछा तो उसने आंखें फैला दी। बार बार उससे पूछा गया तो वो इशारों से बातें करने लगी। जब उससे बार बार पूछकर तंग किया गया तो उसने चुप साध ली। बेगम ने जब ये तौर तरीके देखे तो गुस्से में बोली, मक्कार को कोठरी में ले जाकर उल्टा लटका दो और कोड़े मार कर पूछो। अगर फिर भी ना बताए तो इसकी चुटियां मरोड़ कर काट कर मेरे पास लाओ, फिर मैं इसे कैद खाने में डलवा दूंगी। यह सुनकर 4 बांधियां आगे बढ़ी, हाथ पांव पकड़कर दर्जन को ऊपर टांग लिया और उसे लेकर एक अंधेरी कोठरी की तरफ चली। दर्जन या तो चुप थी, फिर वो लगी चीखने चिल्लाने और लगी उस बांधी को कोसने। बांधी ने गुस्से से कहा कि चल बंद कोठरी में। फिर दर्जन बोली, अरे कुत्ते की सास, तूने मुझे मरवा दिया, धोखेबाज, मुझे यहाँ धोखे से लेकर आई और अब मेरी चुटियां नुचवा रही है। बांधी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये ले अंगूठी पहन ले। दर्जन ने उसका अंगूठा नोच लिया। बांधी चीखने चिल्लाने लगी और फिर जल्दी जल्दी उसे कोठरी की तरफ ले जाने लगी। दर्जन भी चीखती चिल्लाती और घसीटती हुई अंधेरी कोठरी में जा पहुंची। वहां अंधेरा घप था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। बांधियों ने उसे बांधना चाहा तो वो काबू से बाहर हो गई, हाथों को मारने और मुंह से काटने लगी। बांधी को लाते मार मार कर उसके पैर तोड़ दिए। बांधी ने उसे घुसे रसीद किए तो उचक कर उसे चिमट गई और बोली, खून कर डालूंगी। बांधियों ने बड़ी मुश्किल के साथ उसे छुड़ाया और फिर उसे बांधे बगैर ही अंधेरी कोठरी में बंद कर वहां से खिसक गईं। दरवाजा बंद होते ही दर्जन डर गई और चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। काफी देर तक चीखती चिल्लाती रही और शोर मचाती रही, लेकिन वहां पर बचाने वाला कौन आता था। थोड़ी देर के बाद वहां पर बेगम साहिबा पहुंची और दरवाजे के करीब खड़ी होकर बोली, अगर जान प्यारी है तो सच सच बता दे कि ये अंगूठी कहाँ से लाई। फिर दर्जन बोली, जनाब, अगर मैं जान की अमान पाऊं तो मैं सब कुछ सच सच बताऊं। बेगम ने यकीन दिलाते हुए कहा, घबरा मत, तेरा कान भी गर्म नहीं होगा। फिर दर्जन बोली, और दर्जी को तो कोई सजा नहीं मिलेगी। बेगम बोली, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। बेगम ने उसे तसल्ली दी और कोठरी के कवाड़ खोल दिए। दर्जन उसके पैरों में लौट गई और रो रो कर सारा हाल सुना दिया। बेटी की खबर सुनकर बेगम साहिबा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने वजीर को सारा हाल सुनाया। वजीर ने दर्जी को बुलाया। उसने वजीर से पूछा तो उसने भी शुरू में बात को टालना चाहा, लेकिन जब उसके भी पैर खींचे गए तो उसने भी वही सारा हाल सुनाया जो दर्जन ने सुनाया था। वजीर ने सर पीट लिया और दर्जी को साथ लेकर दरबार में बादशाह के सामने पहुंच गया। बादशाह ने तसल्ली दी और कहा, शहजादा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो दुल्हन के साथ सैर तफरी के लिए पहाड़ पर गया था। बादशाह बोला, जरा देखो कि पहाड़ यहाँ से 50-60 मील के फासले पर है। ये दर्जी एक दिन में वहाँ कैसे पहुँचा? जरूर इसने कोई ख्वाब देखा होगा। फिर वजीर वो अंगूठी दिखाकर बोला, हजूर, ये सच्चा वाकया है। देखिए, ये मेरी बेटी की अंगूठी मौजूद है जो इस दर्जी ने लाश के हाथ से उतारी थी। बादशाह ने अंगूठी हाथ में ली, उसे गौर से देखा तो फिर गुस्से से दर्जी की तरफ देखकर बोला कि तुमने ये अंगूठी किस ख्याल से उतारी थी? दर्जी ये सुनकर घबरा गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, हजूर, ये मैंने यूं ही उतारी थी कि ये मैं शहजादी को दे दूंगा। कौन शहजादी? फिर दर्जी बोला, वही जो मुझे घर से कफन सिलवाने के लिए ले गई थी। शहजादे की बहन है वो। और कौन शहजादी? बादशाह ने हैरान होकर कहा, ना शहजादे की कोई बहन है और ना मेरी कोई बेटी। फिर ये शहजादी कहाँ से आन कूदी? मुझे ये पागल लगता है। वजीर ने कहा, अगर इसे पागल समझ लिया जाए तो इसकी बीवी तो पागल नहीं है, वो भी तो साथ थी और वो तो शहजादी की बांदी के उस बेटे का नाम भी बता रही है। ये कहकर वजीर ने उसका सारा पता बता दिया। बादशाह बोला, हैरत की बात है, सारा पता मालूम होने के बावजूद भी तुमने शहजादे का पता मालूम क्यों ना किया? जाओ, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि सिपाहियों के साथ जाओ, शहजादे को और उसके सारे साथियों को गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। दूसरे दिन ये बात पूरे शहर में फैल गई कि वजीर अपने साथियों के साथ पुराने किले पर छापा मारकर शहजादे को गिरफ्तार करके लेकर आ रहा है। लोग ये सोचकर हैरान थे कि शहजादे ने ऐसा क्या कसूर किया है जो उसे नंगे हाथी के पीठ पर बेड़ियां डालकर बिठाकर ले जाया जा रहा है। शहजादे को उसके साथियों के साथ दरबार में सबके सामने ले जाकर खड़ा किया गया। उसके अलावा एक तरफ एक खूबसूरत नौजवान लड़की भी थी जो शहाना लिबास पहने, सर पर ताज रखे गरूराना अंदाज में खड़ी थी। मुकदमा शुरू होने पर कोतवाल ने सबसे पहले बादशाह के सामने झुककर सलाम किया और अदब बजा लाने के बाद कहा, हजूर, वजीर ने मुझे इस सारे मामलात पर छानबीन करने के लिए कहा। यह मेरा फर्ज था कि बगैर किसी पर रहम किए सारे मामलात की छानबीन करूं और कसूरवार को हजूर के सामने पेश करूं। चनाचे मैं चंद सिपाहियों के साथ कल्लू की माँ के घर पर गया। उसे साथ लेकर मैं पुराने किले पर गया और शहजादे पर छापा मारा तो मैं शहजादे को और शहजादी साहिबा को सारे नौकरों समेत यहाँ पर ले आया और दुल्हन को दफन कर दिया गया है, इसलिए वो कहीं नहीं मिली। कल्लू की माँ कहती है कि उसे गला घोंटकर मार दिया गया है। बादशाह ने हुक्म दिया
कि कल्लू की माँ को पेश करो। कल्लू की माँ को बुलाया गया। वो हाँपते कांपते वहाँ पर आई। बादशाह ने कहा कि शहजादे ने तुम्हारे सामने दुल्हन को गला घोंटकर मार डाला। बांदी बोली, हाँ हजूर, रात को 11 बजे के करीब का वक्त था। मैं दुल्हन के पैर दबा रही थी कि शहजादी ने मुझे बुलवाया। मैं जाने लगी तो दुल्हन ने मुझे रोक लिया। इससे शहजादी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वहीं पर पहुंच गई, लेकिन दुल्हन ने मुझे वहां से नहीं उठने दिया। शहजादी ने मुझे घसीटा तो दुल्हन ने अपनी तरफ खींच लिया। तकलीफ होने पर मैं चिल्लाई। दोनों ने मुझे छोड़ दिया और आपस में झगड़ने लगी। मामला इस हद तक बढ़ गया कि शहजादी ने दुल्हन का गला घोंट दिया और दुल्हन आखिरी चीख मारकर दुनिया से रुखसत हो गई। ये सारी बातें सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और वजीर भी फूट फूट कर रोने लगा और वजीर की बीवी और उसकी बेटी भी चीखें मारकर रोने लगी। बादशाह आंसू पोंछते हुए बोला, अब दर्जी को हाजिर करो। दर्जी हाजिर हुआ और टोपी के अंदर से सुई निकालते हुए बोला, हजूर, ये तो वो सुई है जिससे मैंने कफन सिलाई किया था और धागा मैं वहीं पर फेंक आया था क्योंकि मुर्दे के कफन का था। और सामने वो शहजादी खड़ी हैं जो मुझे बुलाकर लेकर गई थी। ये मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर लेकर गई थी। आंखें खुलने पर मैंने देखा एक ख्वाजा सरा था जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए एक तान में ले गया। लाल पर्दा पड़ा था उसमें। फिर ये शहजादी आई। इसके नखरे क्या कहूँ, भली मानस, लेकिन झूठ क्यों बोलूँ। इसने मुझे बहुत सारी अशरफियाँ दी और मेरे साथ अच्छा सलूक किया और फिर एक बांधी के साथ मरने वाली के कमरे में मुझे कफन सिलवाने के लिए भेज दिया। वहाँ जो कुछ भी देखा वो मैं बयान नहीं कर सकता। यह कहकर दर्जी हूँ करके रोने लगा। बादशाह ने पूछा, और क्या देखा तुमने? दर्जी बोला, सरकार देखता क्या हूँ कि मशेरी पर सामने दुल्हन बैठी है। फूलों के हार पहने हुए थी, वो कीमती जोड़ा पहने हुए थी, खूबसूरत बालियां कानों में थी और गले में हीरे का हार था। गले की उभरी हुई रगों से यह मालूम होता था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। कफन सीते वक्त मैं काफी देर तक रोता रहा। करीब खड़ी बांदी से कुछ पूछना चाहा तो उसने मुझे डांट दिया। कफन सिल जाने पर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और मुझे घर पहुंचा दिया गया। बस उसी दिन से मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। बादशाह शहजादे से मुखातिब होकर बोला, यह शहजादी कौन है? शहजादा सर झुकाकर बोला, मैंने दूसरी शादी कर ली है इन शहजादी से। बादशाह ने पूछा, कहाँ की शहजादी? शहजादा बोला, इनका नाम है शहजादी। बादशाह बोला, अरे नालायक, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू एक जलील औरत से शादी करके वजीर जादी का इस तरह से खून करवाएगा। यह सुनकर वो ताज वाली लड़की कड़क कर बोली, किसी को मेरी तौहीन करने का हक नहीं है। आप बादशाह हैं तो अपने लिए। यह सुनकर सितारा स्याह बुरके में से बिजली की तरह तड़प कर अपने बाप यानी वजीर के पास पहुंची और उसकी बगल से खंजर निकालकर शहजादी के करीब जाकर पूरा का पूरा खंजर उसके सीने में घोंप दिया। कोतवाल ने आगे बढ़कर लड़की को पकड़ लिया और चाहता था कि इसे गिरफ्तार करे, लेकिन बादशाह चिल्लाकर बोला, लड़की को छोड़ दो, इसने इंसाफ किया है और एक खूनी की यही सज़ा है। और इस तरह से एक मुजरिम को उसकी सज़ा मिल गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।